Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the biotic components of your ecosystem. So we are discussing about the structure of the ecosystem. In the previous class we discussed about the abiotic, that is the non-living part of your ecosystem. Now the next is about the biotic component. So the term biotic is formed by the combination of the two terms. कौन सा आता है? One is the bio. Bio simply means the life, and the ic means the life. It means actually life. So the term biotic itself means life, and it's related to all the living entities present in an ecosystem. So what is the biotic component? Simply you need to remember is the living component. जितनी भी living species आपकी ecosystem में आ रहे हैं, environment में आ रहे हैं, they are simply included in the biotic component of the environment. So biotic resources include all the living organisms from the animals, humans, जो भी है, plants है, even the microbial very minute populations जो living species हो like bacteria, fungi, वो सब बनाते हैं आपके biotic component. And for example here, ये कोई इकोसिस्टम है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉन्ड इकोसिस्टम हेयर. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? दिस डाक, दिस फिशेस, ठीक है, इवन दिस प्लांट्स जो यहाँ पे ये दिस प्लैंक्टॉन्स है, वाटर स्पीशीज है, एक्वेटिक प्लांट्स है, एंड दिस माइक्रोबियल पॉपुलेशंस है, बैक्टीरिया, फंगाई, दीज आर ऑल, क्योंकि इन सबको क्या है, दे ऑल हैव गॉट द लाइफ, दे आर ऑल द लिविंग स्पीशीज. ये सब आपके बनाएंगे इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम का क्या बनाता है? द बायोटिक component. Okay, so the and जो है so simply biotic factor जो है और the biotic component है, that is the living part of any environment. जो भी living species आपके environment में है, they are the biotic component. And the and the interaction between various biotic factors are necessary for the survival and reproduction of each species. और जो इनका yes, one they interact with the abiotic factor, ठीक है, ये सनलाइट ज़रूरी है इस प्लांट के लिए, तब जाके इसका ग्रोथ होगा. बिसाइड्स ये जो स्पीशीज़ है, तब जाके क्या है, इनका इंटरेक्शन भी आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है. सी हाउ, फॉर एग्जाम्पल जो ये बैक्टीरिया है, ये किस पे फीड करते हैं? लेटर ये जो इनकी डेथ हो जाएगा, ये जो प्लांट्स है या फिश है या डक है, ठीक है, तो ये इनसे फिर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी इनमें जो भी दिस कॉम्प्लेक्स जो भी इनमें कंपाउंड्स है, न्यूट्रिएंट्स है, लेटर वो इनको ब्रेक डाउन करते हैं और उसको फीड, यानी उसका न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? इनकी डेथ जो हो जाएगा तो डिके विल बी ब्रॉट अबाउट बाय दिस बैक्टीरिया. सो और दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, और इसके लिए भी ज़रूरी है. अदरवाइज फॉर एग्जांपल जब लिविंग फिशेस है, यहाँ पोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़े, तो यहाँ वाटर का प्योरिफिकेशन टाइम टू टाइम होना चाहिए. सो दीज बैक्टीरिया आल्सो हेल्प इन दिस प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ दिस एक्वाटिक सिस्टम. सो देयर इंटरैक्शन जो है बायोटिक स्पीशीज है, वन बायोटिक जो लिविंग स्पीशीज है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अदर वेरी स्पीशीज, क्योंकि वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इन a very positive way. तो and there that which is very important for the survival and the reproduction of each species. Next is what now you know that biotic is simply the every living species in any particular ecosystem, or the जो भी आपके environment में है, these living species, and on the basis of their role, क्या रोल है उनका in the ecosystem, the biotic components are broadly classified into three main broad groups, ठीक है. So what is the role of these particular very species? These are categorized into the three main groups. कौन सा आता है? The first one, this biotic component पहला कौन सा group है? First is the producers, next is consumers, and the last one is decomposers. So what will be the producers? Producers simply means जो produce करेगा. क्या produce कर रहा है? Food. So जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर्स में वो स्पीशीज आएंगे, दोज हु आर कैपेबल और एबल टू प्रिपेयर दियर और प्रोड्यूस दियर ओन फूड, तो उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. नेक्स्ट इज द कंज्यूमर्स जो होंगे, जो आर नॉट एबल टू प्रिपेयर बाय इटसेल्फ, खुद का वो फूड खुद से नहीं बना रहे, वो किसी और स्पीशीज पे दे आर डिपेंडेंट टू गेट दियर ओन फूड, तो वो कंज्यूम कर रहे हैं किसी और स्पीशीज को एज सोर्स ऑफ दियर फूड, दैट आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ द कंज्यूमर्स. एंड द लास्ट इज द डिकम्पोजर्स मीन सिंपली जो भी इसमें स्पीशीज आएंगे, ठीक है, जो डिकम्पोज करेंगे जब इन प्रोड्यूसर्स का डेथ हो जाएगा, ठीक है, कंज्यूमर्स का डेथ हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन, या इनके पार्ट्स गिरेंगे, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन दैट टाइम,
जो डिकम्पोजर्स है वो उनको फाइनली क्या है, दे विल ब्रॉट अबाउट द डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स डिकम्पोजर्स, उनको क्या बोलते हैं, दीज द decomposers and includes mostly your bacteria fungi, ठीक है. These are the three main categories of the biotic component. One is producer, consumers and the decomposers. Next, first we will discuss about the producers. Producers कौन होते हैं? Producers are the species जो खुद का फूड खुद प्रोड्यूस करेंगे, and these are mainly the green plants which you mostly all of you know, because the plants they can synthesize their own food and the process जिसको बोलते हैं photosynthesis. So what, जो इसमें dominating part है producers कौन आता है, especially it includes all the green plants. Why? क्योंकि वो खुद अपना फूड बनाते हैं by process of photosynthesis, वो खुद फूड अपना प्रोड्यूस करते हैं. And although this process of photosynthesis is mostly common कहाँ पे है या associated है with plants, मगर there are some special types of the bacteria, for example the cyanobacteria, वो क्या करते हैं, they are also able to prepare their own फूड, ठीक है. सो जो इसमें प्रोड्यूसर्स वो स्पीशीज आता है जो प्रोड्यूस करेंगे आपने फूड खुद. फॉर एग्जांपल मोस्टली इट इंक्लूड्स द डोमिनेटिंग जो भी इसमें स्पीशीज है, दैट्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स है, एल्गाई है एंड द बैक्टीरिया जो है साइनो बैक्टीरिया, क्योंकि दिस बैक्टीरिया इज ऑल्सो एबल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड. So these producers are also called the autotrophs, because auto means self and trophos means feeder, क्योंकि ये खुद को खुद feed कर रहे हैं. They are not dependent on any other species to get their food, ठीक है. They are capable, ठीक है, इनमें process है, mechanism ऐसा है, they are preparing their own food. So remember जो producers है, they are mostly your green plants. Now what is photosynthesis? what photosynthesis होता क्या है and how it is happening and what the photosynthesis basically, ठीक है. जो plants है, जो क्योंकि हमारा जो भी ट्रॉफिक स्ट्रक्चर है, जो भी फूड चेन्स है, वो स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से, ठीक है. दे आर द बेसिक एट द रूट, एट द बेसिक जो भी पिरामिड्स हमारे इकोसिस्टम में बनेंगे, दे आर द बेसिक जो उससे रन होता है चेन, जो भी फूड चेन्स है, फूड वेब्स है, तब जाके उससे सस्टेन होती है व्हेन वी हैव द बेसिक प्रोड्यूसर्स देयर. क्या मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इनमें हो रहा है जिससे ये हमें फूड बना रहे हैं एंड वी कंज्यूमर्स आर नॉट एबल टू, यू नीड टू रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनमें हो रहा है फोटोसिंथेसिस. एंड हियर इज अ लिटिल अबाउट द फोटोसिंथेसिस व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस बेसिकली. See why photosynthesis क्या है? It is the process by which the green plants are preparing their own food. तो ठीक है, चलो हम भी बनाएंगे, but why we are not able to? Basically जो photosynthesis होता है ये क्या होता है? For example जो आपके प्लांट्स के जो लीव्स है, दे ट्रैप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. यहाँ से क्या लेते हैं, रूट से पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी के साथ वो मिलता है, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड दे वाटर दे कंबाइन एंड बनाते हैं यहाँ पे सिंपल शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. शुगर्स जो लेटर यूज होता है एज अ फूड बाय द प्लांट. सो यू नीड टू रिमेंबर व्हाई. मगर यहाँ प्लांट्स इनको ट्रैप यहाँ भी करेंगे, नो, ये दे रिक्वायर एक स्पेशल ऑर्गेनेल होता है इसके लिए ज़रूरत, एक स्पेशल पार्ट आप याद रखिएगा ऑफ द प्लांट. फॉर एग्जाम्पल इसके लिए प्लांट्स में बेसिकली क्या होता है, इन्होंने सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं. कौन करता है इसमें? बेसिकली प्लांट्स कंटेन द क्लोरोफिल. What is happening? Simply what is the photosynthesis? ये जो leaves है यहाँ से लेते हैं, रूट से पानी आता है, लीव से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड इन प्रेजेंस ऑफ द दिस क्लोरोफिल जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, बेसिकली इन दिस क्लोरोप्लास्ट्स, तो बनाते हैं प्लांट का फूड. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस क्लोरोप्लास्ट और द chlorophyll. The green plants have the chlorophyll with the help of which they can trap solar energy and change into chemical energy of the carbohydrates. So what happens here then? So the green plants have the chlorophyll which is the light absorbing pigment. So what is important here? जो plants है उनमें क्या होता है, basically they contain the chlorophyll which is important to remember, which is the light absorbing pigment. क्योंकि plants ने food बनाया, क्योंकि they are able to get their energy and trap the solar energy, क्योंकि उनमें light absorbing pigment present है. Same as in case of the cyanobacteria, they are able to trap the solar energy, वो solar energy को trap कर रहे हैं, ठीक है. and वहाँ क्या react कर रहे हैं presence of sunlight, carbon dioxide water के साथ, and they are preparing their food, the simple these sugars, ठीक है. So why plants में हम देख रहे photosynthesis हो रहा है, क्योंकि in plants there is present the chlorophyll. So what is the photosynthesis? Simply the process by which green plants and certain organisms transform this light energy into the chemical energy. कैसे किया? sunlight को plants ने trap किया, carbon dioxide react किया this water के साथ,
तो व्हाट हैपन्स, तो फाइनली जो लाइट एनर्जी को इन जो लाइट पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब किया, ट्रैप किया, तो फाइनली किस में, ये जो रेडिएंट एनर्जी था इसको चेंज किया हमने कार्बोहाइड्रेट्स में, इसमें जो बॉन्ड्स बनेंगे तो उसमें रहेगा इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल एनर्जी। तो अल्टीमेटली क्या बनता है इस फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज विच इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी जो प्लांट यूज करेगा इन इट्स ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। सो दिस इज लिटिल अबाउट द photosynthesis and this is the reaction for example here क्या होता है simply sunlight ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड reacts with the water in presence of the sunlight and in presence of the chlorophyll जो कहाँ पे होता है इनके ग्रीन प्लांट्स में। तो क्या मिलता है फाइनली वी गेट द ग्लूकोज एंड द ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज है वो उनका खुद का फूड है। सो व्हाट हैपन्स बेसिकली जो सन एनर्जी तो कौन इसको ट्रैप कर पाता है, जो भी हमारे अर्थ पे क्या है ग्रीन जो भी वेजिटेशन है। तो क्योंकि जो भी वेजिटेशन जो भी ट्रीज है प्लांट्स है दे आर व्हाट बेस्टोड विद व्हाट द पिगमेंट क्लोरोफिल। तो इनमें प्रॉपर्टी होती है दे आर एबल टू ट्रैप दिस सोलर रेडिएशन। तो बेसिक कहाँ एंटर हो रहा है हमारा इकोसिस्टम, एनर्जी कहाँ पे हो रही है, इट्स बाय दीज वेरी ग्रीन प्लांट्स जो हमारी प्रोड्यूसर जो बेसिक फूड चेन पे बेसिक इकोसिस्टम में हमारे बेस बनाते हैं। सो सर्टेनली व्हेन देयर आर द प्लांट्स एनर्जी कैसे अब रन हो रहा है इकोसिस्टम बेस, इसको आके फिर कंज्यूमर्स खाएंगे, कंज्यूमर से फिर लास्ट एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होता है टू द डिकम्पोजर्स। सो सर्टनली जो हमारे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज जो ग्रीन वेजिटेशन है क्योंकि बेसिकली इनमें क्लोरोफिल होता है एंड ड्यू टू द क्लोरोफिल दे आर एबल टू ट्रैप हार्नेस दिस वेरी सोलर एनर्जी लेटर जो ट्रांसफर हो जाते हैं टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द जो भी फूड चेन में आता है। तो बेसिकली सस्टेन कहाँ से हो रहा है, व्हेन देयर इज जिसमें पोटेंशियल है, एबिलिटी है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, एनर्जी को ट्रैप कर रहा है दीज वेरी ग्रीन प्लांट्स। तो इससे जाकर आपका सारा फिर इकोसिस्टम सस्टेन होता है। बेसिकली इसने एनर्जी स्टोर किया, ट्रांसफर हो गया कंज्यूमर्स को टू द डिकम्पोजर, सो योर इकोसिस्टम्स आर सस्टेनिंग। एंड दिस इज हेयर द इक्वेशन, दीज आर द सिंपल शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके प्लांट्स बनाते हैं, इसकी तब ग्रोथ होगी। तो इसी वजह से तो हो गया व्हेन देयर इज क्लोरोफिल, जब एनर्जी ट्रैप होगी ग्लूकोज बना, इसकी ग्रोथ होगी, ये खुद भी सर्वाइव करे एंड लेटर जो कंज्यूमर है पहले बेसिकली जो डायरेक्टली इधर हर्बीवोर ओमनिवोर वो आकर खाएगा इस स्पीशीज को, तो नेक्स्ट स्पीशीज में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। सो द वे देयर इज द सस्टेनेंस जो भी हो रहा है हमारे इकोसिस्टम्स का। एंड सर्टनली व्हाट विल हैपन इफ द फोटोसिंथेसिस इज सीज्ड, देयर वुड बी सून will be little food. What will happen, और almost फिर no food रहेगा after some this time period. What will happen, अगर certainly क्योंकि basic जो भी हमारा है जो भी energy है, क्योंकि जो हमारे plants है उनमें photosynthesis हो रहा है, energy trap हो रही है और उससे हमारे ecosystem sustain हो रहे हैं। क्योंकि later जो consumers है they are indirectly all are dependent on the plants. What happens obviously जब ये suppose photosynthesis बंद हो गया, instant cease हो गया, so what will happen obviously there will be no food or the so on little food. Why, ये खत्म हो गया, consumers will die ultimately, बाकी जो populations वो भी impact होगी and certainly most organisms will disappear. This is showing how important the photosynthesis, क्योंकि ये हमारा root है, basic है, कहाँ है हमारे food chains है, जो भी sustenance है कहाँ से base बनता है, from the by this very process the photosynthesis जो कौन करते हैं आपके producers. So this is about the biotic component of the ecosystem, and here today we discussed only about the first producers.